So good morning everyone. In your last Google assignment I have given you this numerical, which numerical is basically is of marginal costing, and this is the question which says a company produces three products A, B and C. The sales price is given 1 lakh 50, 90,000, 60,000 and total is 3 lakh, and variable cost is given. Here its contribution is given. Contribution is basically sales minus variable cost. 1 lakh 50,000 minus 1 lakh 20,000 will give you 30,000. So here it's shown sales of total 3 lakh of all the three products, variable cost of 2 lakh 19,000 by adding all three, and contribution is 81,000. Fixed cost is 40,500. So when we subtract this contribution 81,000 from 40,500, we get the profit. So a company producing product A, B and C, and now they want to find out that which product is more beneficial to produce. So the first thing what we do to find which product is more beneficial is to calculate the PV ratio, because PV ratio tells profit volume ratio, means what will be the change in profit when the volume of production will change or when the volume of sales will change. So we will calculate the PV ratio of product A, product B and product C. The formula to calculate PV ratio is sales minus variable cost upon sales into 100. This I have already taught you in the classes. So I am coming directly to the solution. Here you can see that what we have done, we have calculated the PV ratio of A, PV ratio of B and PV ratio of C. So which is 20%, 30% and 40%. PV ratio calculate कैसे हुआ है? The sales 1 lakh 50 minus variable cost 1 lakh 20,000 divided by sales 1 lakh 50,000 into 100. Similarly for this and similarly for C. So PV ratio shows that out of the three products A, B and C, A is less profitable because PV ratio is less, whereas B and C are comparatively more profitable. So in order to decide that how to change the sales of all the three products so that profit can be increased, here we can see the profit is 40,500, which is already given in the question. So now we are clear that A की sales को we can minimize and B and C की sales को we can maximize, because A में profitability कम है, B और C में ज़्यादा है. हम लोग टोटल सेल्स कर रहे हैं 3 लाख रुपये की, जिसमें कि A की 1 लाख 50 है, B की 90 और C की 60 है. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी दैट अगर हम लोग A की सेल्स को लेस कर देते हैं से 30,000 से और B और C की सेल्स को हम लोग बढ़ा देते हैं से 15,000 से, सो प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आ रहा है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, दे हैव रिड्यूस द सेल्स ऑफ ए की सेल्स थी 1,50,000, इसको रिड्यूस कर दिया है बाय 60,000. ठीक, मतलब अब ए की हम लोग सेल्स कर रहे हैं 90,000. हेयर यू कैन सी 90,000 हेयर. और बी, और जब 60,000 ए की रिड्यूस करी तो बी की हम लोगों ने 30,000 से बढ़ा दी. 60,000 रुपीज़ की लेस करी, हमें टोटल सेल्स रखनी है सेम 3 लाख रुपीज़ की, ये दिया हुआ 3 लाख की सेल्स रखनी है. तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो इट्स शोइंग कि सेल्स 3 लाख रुपए की ही है, बट हम लोगों ने ए की 60,000 से कम कर दी है, जो पहले 1,50,000 थी उसको 90 कर दिया है, और बी और सी को, बी की पहले 90,000 सेल्स थी उसको हमने बढ़ा के कितनी कर दी है 1,20,000, 30,000 से बढ़ा दिया है. सिमिलरली सी की बढ़ा दी है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसको करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले 40,500 थी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. तो इसको करने के लिए क्या, अब जब सेल्स में चेंज आया तो कॉन्सिक्वेंटली वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आ जाएगा. अब यू विल आस्क कि वेरिएबल सेल्स, ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई है 72, 84 और 54,000. इसके आने का तरीका है कि जब हम लोग ने यूनिटरी मेथड यूज़ किया है, जब सेल्स थी 1,50,000 पहले वाले केस में, हियर यू कैन सी, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी 1,20,000. ठीक, जब सेल्स हो गई 90,000 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, सो 90,000 divided by 1,50,000 into 1,20,000 will give you this 72,000. यूनिटरी मेथड कि जब सेल्स थी 1,50,000 ए की तो वेरिएबल कॉस्ट थी 1,20,000. अब जब सेल्स हो गई 90,000 तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी
90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इन लाख इंटू 1,20,000, जिससे आ जाएगा 72,000। सिमिलरली हम लोग बी में यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 लाख जब सेल्स थी 90,000 तो वेरिएबल कॉस्ट थी 63,000। जब सेल्स हो गई हमारी 1,20,000 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अब बढ़ेगी। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 63,000, ऐसे ही हम लोग सी की करेंगे। तो जब ए बी सी की हम लोग की तीनों की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, विच यू कैन सी ओवर हेयर, तो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके, विच इज़ 18,000, 36,000 एंड 36,000। ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, 90,000 माइनस 54,000, 36,000, 1,20,000 माइनस 84,000, 36,000 एंड 90,000 माइनस 72,000 विल गिव यू 18,000। अब हमने टोटल सेल्स ये ऐड कर दिया यहाँ पर, और वेरिएबल कॉस्ट सबको ऐड कर दिया, और कंट्रीब्यूशन को सबको ऐड कर दिया। एंड फिक्स कॉस्ट तो यू नो कि वो सेम ही रहेगी। सो व्हेन इन दिस केस जब सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हम लोग सब ऐड कर देंगे, सेल्स 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 2,10,000, कंट्रीब्यूशन 90,000, फिक्स कॉस्ट 40,000। तो नाउ 90,000 कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 40,000, 500 जो ऑलरेडी सेम है जो पिछले क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारी थी। इस बार हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, our profit will be this 49,500. So this question shows that by first calculating PV ratio we can find out which products are more profitable, and then by changing the sales mix we can calculate what will be the effect of profitability. So through this question we can learn that how we using marginal costing we can फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द ऑप्टिमम सेल्स मिक्स। हमने इसमें क्या किया, ए की सेल्स को लेस कर दिया क्योंकि वो अनप्रॉफिटेबल था, और बी और सी की सेल्स को बढ़ा दिया। सो इन दिस वे वी सॉल्व सच काइंड्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग न्यूमेरिकल। गो थ्रू दिस न्यूमेरिकल एंड वीडियो। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लास और ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।